Hard work and consistency remains the core currency of success in UPSC. I was stressed about the fact that I had to go till the third attempt. वो मेरा पर्सनल लेवल पे था. अब ये चूंकि मेरा थर्ड अटेम्प्ट था और 3 ही महीने बचे थे और मैंने इसके पहले 7 महीने 9 महीने तक किताबें भी नहीं उठाई थी. For me, I had to work really hard in this attempt. At least till 2-3 months before prelims, preparation integrated होनी चाहिए. Hello and welcome to Byju's Exam Prep Spotlight. We are back again with another topper of UPSC Civil Services Examination 2021, the most prestigious examination of our country, the lengthiest examination, and hence it entails lots of perseverance, but at the same time, there are lots of rumors, myths prevailing among IAS aspirants. Students, they start their preparation, they get deviated, they do not get that chance to physically interact with the toppers in most of the cases. So as a result, they end up being more frustrated, not being successful. So that is why it is a customized initiative by Byju's Exam Prep under Spotlight to invite the toppers and discuss various issues, topics concerning the holistic preparation for this examination. Today, we are joined by Mr. Yasharth Shekhar, All India Rank 12, in the result declared a few days back for the Civil Services Examination 2021. Welcome Yasharth, welcome to Byju's Exam Prep Spotlight. Thank you so much. And let us start. I saw that video that was viral. That is viral on YouTube. The kind of expression you are giving after getting selected. What was your first reaction? The first reaction was when I saw my rank 12. So I started, in Hindi we say 12 as Barvi. So I started shouting Barvi, 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 and my mother started, crying happily. After that, she recorded that video of mine and sent it to a relative. Eventually, it went to places. But that moment was a moment of relief and happiness both at the same time, because hardly very few people get to experience that moment in their lives. And so I'm very grateful to everyone who was part of that journey, because that was a completion, that was a climax of my preparation journey. And whatever came out back then in the video or just after the result, it was very natural. It happened all of a sudden. It was like all the emotions releasing simultaneously, so you don't know what you're feeling then, and so what comes out of your mouth then you don't control it. But at the end of the day, I can't do anything about that video. It went viral, so many people started tagging me, and now I made peace with that video. So now I'm very happy and grateful to everyone who helped me in this process, and I'm very happy with the rank that I've got. So very satisfied now. Great, you are topper of this exam. So now All India Rank 12. It is a huge achievement. So how did your journey start, Yasharth, actually? And when did you decide that this IAS is your ultimate destination? ये decision I think मैंने class 10th में ले लिया था. Okay. मैंने class 10th के बाद I started with humanities as stream in class 11th. और उसके बाद मैंने सब्जेक्ट्स भी मेरे क्लास 11th में वही थे, हिस्ट्री, जोग्राफी नहीं मिला, हिस्ट्री था, पॉलिटिकल साइंस था, इकोनॉमिक्स था, मैथ्स था, इंग्लिश था. एंड आफ्टर दैट आई केम टू दिल्ली यूनिवर्सिटी. और जब ये चीज़ डिसाइड हो गई थी कि 10th में ह्यूमैनिटीज़ लेना है, तो माई ऑब्जेक्टिव बिकेम कि एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है टू गो इनटू सिविल सर्विसेज. और उसके बाद मैं फर्स्ट ईयर में आया अपने कॉलेज में. मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, वीकेंड बैचेस करता था टू स्टे इन टच. सीरियस प्रिपरेशन नहीं चल रही थी, बट जस्ट टू स्टे इन टच. मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया उस चीज़ के लिए. एंड आफ्टर दैट सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट हुई आफ्टर आई ग्रेजुएटेड इन 2018. उस साल मैं दे नहीं सकता था क्योंकि आई वॉज अंडर एज, सो आई गेव माई फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2019. लेकिन जो सीरियस प्रिपरेशन थी वो 18 से स्टार्ट हो गई थी. आई स्टार्टेड रीडिंग NCERTs एंड मूव्ड ऑन टू एडिशनल एडवांस सोर्सेज. आई स्टार्टेड माई ज्योग्राफी प्रिपरेशन. सो ऐसे जर्नी मतलब होता रहा. और पेरेंट्स का सपोर्ट था, तो आई हैड सम लीवे कि मतलब मेंटली स्ट्रेस नहीं था. आई वॉज स्ट्रेस्ड अबाउट द फैक्ट दैट आई हैड टू गो टिल द थर्ड अटेम्प्ट. वो मेरा पर्सनल लेवल पे था, बट पेरेंट्स की तरफ से कभी मतलब स्ट्रेस नहीं आया. दे वर विलिंग टू सपोर्ट मी टिल द 6th अटेम्प्ट. सो
इस तरीके से आई फ्रेम्ड आउट माई जर्नी। अच्छा, 10वीं क्लास में आपने सोचा कि आपको आईएएस में जाना है, ह्यूमैनिटीज लेना है, कोई ट्रिगर हुआ, कोई इंसिडेंट हुआ था? ऐसे ट्रिगर तो मैं नहीं कहूँगा, बट बिकॉज माई फादर इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट सर्वेंट, वो उन सबॉर्डिनेट कोर्ट में जज हैं, तो हमेशा से एक मोटिवेशन रहा है कि गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है। एक तो ये था मोटिवेशन, और दूसरा मैंने देखा था कि बिकॉज माई फादर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद सो मेनी सिविल सर्वेंट्स, और वो जब डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं तो कोऑर्डिनेशन भी रहता है, बातचीत भी होती है, फैमिली फंक्शंस में कभी कभार आ जाते हैं, एसपी आ जाते हैं, डीएम आ जाते हैं। सो व्हेन यू टॉक विद देम यू रियलाइज द काइंड ऑफ पावर दे हैव टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन पीपल्स लाइव्स। और मैंने देखा है कई सारे इनिशिएटिव्स लेते थे डीएम कि मतलब फ्री एजुकेशन वाले हो गए, या आप डाउन ट्रोडन को उठा के ले आए आप, बिकॉज यू हैव द पावर टू इनिशिएट समथिंग, बिकॉज दैट पावर इज गिवन टू यू बाय द वेरी पोजीशन दैट यू होल्ड। So, उसने थोड़ा सा मतलब मोटिवेट किया कि हाँ इस सर्विस में करना है। अब मैंने देखा था माय फादर वाज इन जुडिशरी, और मेरा कभी कोई इतना इंटरेस्ट नहीं रहा था, उस रुझान नहीं था उस तरफ जाने का, तो मुझे लगा कि ये एक दूसरा एस्पेक्ट हो सकता है जिसको मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। फिर नाउ आई नो, बिकॉज अब तो मैं सिविल सर्विसेज में जाने वाला हूँ, तो और मैंने पढ़ा भी है इस नौकरी के बारे में। तो आप देखिए, हेल्थ में आप काम कर सकते हो, एजुकेशन में काम कर सकते हो, टूरिज्म में काम कर सकते हो, नए चैलेंजेस, क्लाइमेट चेंज हो गया, या इन सब आप काम कर सकते हो। यू हैव द पावर टू इनिशिएट चेंज, यू हैव द पावर टू ब्रिंग अबाउट चेंज। तो इन सब चीज़ों ने मोटिवेट किया। गुड। यशार्थ, ये आपका 3rd अटेम्प्ट था, और आपके अंदर ये परसिवरेंस था कि जितना भी अटेम्प्ट लगे मुझे इसमें जाना है। बट एट द सेम टाइम वी सी अ गुड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु गेट डिमोटिवेटेड कि भाई नहीं होगा, दे आर डिप्रेस्ड, दे फील डिसअपॉइंटेड। सो जब मैं टॉपर से बात करता हूं तो दे ऑलवेज से टॉक अबाउट इनर मोटिवेशन। आपने कैसे बनाया वो इनर मोटिवेशन कि तीसरे अटेम्प्ट में, फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में आपको वो सफलता नहीं मिली, लेकिन उसी जोश के साथ आप लगे रहे एंड यू वेर प्रिपेयर्ड कि मुझे 4th भी देना है तो दूंगा, लेकिन मुझे यही जाना है। तो व्हाट वाज द कैटलिस्ट? कैसे इनर मोटिवेशन रखा आपने? इनर मोटिवेशन का ऐसा है कि 2 तरह के मोटिवेशन मैं समझता होते हैं। एक ही द इनर मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम विद इन यू कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे इस जॉब में नहीं जाना, मुझे इसी जॉब में जाना है। ये आपके अंदर मोटिवेशन, मतलब दिस विल कम थ्रू योर ओन इनर सेल्फ, जो है आपकी, वो बोलेगी कि मुझे यही करना है। दूसरा, द सपोर्ट दैट यू गेट फ्रॉम द आउटसाइड, फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर फ्रेंड्स, उसमें कभी कोई कमी नहीं थी। माई पेरेंट्स वर ऑलवेज सपोर्टिंग मी। उन्होंने बोला था कि 6th अटेम्प्ट में भी नहीं होता है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। तो वो स्ट्रेस पूरी खत्म हो गई थी। फिर एक मोटिवेशन था कि यार जब ग्रेजुएशन, मतलब तुमने क्लास 10th अच्छे से किया है, क्लास 12th अच्छे से किया है, यू ऑलवेज बीन अ गुड एकेडमिक स्टूडेंट, तो मतलब ठीक है, स्ट्रगल हो रहा है, और डीमोटिवेशन इट्स नेचुरल पार्ट ऑफ जर्नी। जब पिछले साल रिजल्ट आया था, आई रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, September 24, और 6 बजे अराउंड रिजल्ट आया था। आई वॉज हाइपर वेंटिलेटिंग कि मम्मी क्या हो गया, आई वॉज क्राइंग ऑन हर शोल्डर्स, and my mother, and I was thinking, let me take a break, it's a very tough process, you complete 1 year journey and then eventually it comes to nothing and you have to go give prelims again। और मैंने prelims के लिए पढ़ा भी नहीं था कुछ, और 16 दिन बचे भी थे। रिजल्ट आया था September 24 को, और prelims था 10th October को। तो I was very that was the lowest point of my life, and मैंने सोचा अब इससे नीचे जाएंगे नहीं, अब इससे नीचे क्या ही जाएंगे। प्रीलिम्स में क्या होता है कि अगर आप देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में नहीं हुआ, देन यू हैव एन एंटायर ईयर टू थिंक अबाउट व्हाट वेंट रॉन्ग, हाउ इट वेंट रॉन्ग। आई टॉक टू माय फादर बैक देन इन 2019 व्हेन माय प्रीलिम्स आई डिडंट क्वालिफाई प्रीलिम्स। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मेहनत करो, वही है, वही रास्ता है, वही ड्रिल है, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव टू इट। एंड आई रियलाइज व्हाट माय मिस्टेक वाज। इन द सेकंड अटेम्प्ट आई रियलाइज व्हाट माय मिस्टेक वाज एंड आई वाज एबल टू करेक्ट देम इन माय थर्ड अटेम्प्ट। और देखिए रही बात क्या मोटिवेट करता है, इट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन। फॉर सम इट्स द पावर टू ब्रिंग चेंज, फॉर सम इट्स द पोजीशन इटसेल्फ, एंड फॉर सम कि भाई आपको अपने मम्मी पापा को खुश करना है, वो भी एक तरह का मोटिवेशन होता है कि सम पीपल लाइक टू डिवोट देयर लाइफ टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स। मेरे लिए ये था कि आई वांट टू बी समथिंग ऑन माय ओन, आई वांटेड टू स्टैंड ऑन माय फीट। ऑल्सो द पावर टू ब्रिंग चेंज वाज एन एडिशनल बेनिफिट ऑफ दिस जॉब। सो ये 3 चीज़ें थी, और बाकी तो कहते हैं ना, रास्ता मतलब कारवां चलता गया, लोग जुड़ते गए और वो चलता होता गया जो होता गया। तो ये सब चीज़ें थी बस। इट्स अ वेरी ऑर्गेनिक जर्नी। It's very difficult to pinpoint exact stages where something occurred or not. It happens all of a sudden. You realize those changes seem very small, but what their effect is eventually you come to realize only after you have cleared it. Good. अच्छा,
you have to do so many subjects, 14, 15 subjects, apart from optionals. You have your personal life also. So, कैसे you could manage your time given the vastness of syllabus that you, if you could share, that is helpful for the students. टाइम का तो आपने जैसे बोला पर्सनल लाइफ के बारे में, पर्सनल लाइफ गोज फॉर अ टॉस फॉर अ वाइल. So, or this in my third attempt when I had only 3 months to prepare, I did not go for any social gathering. I did not celebrate Diwali. I had not celebrated New Year also because दोनों ही पड़ गए थे. In fact, if I can give you an example, जब New Year था 31st December को, from 11 in the night till 2 I was writing my geography optional paper 2 test. So I had given up everything, every fun that can be part of your life, and I realized that these are the 3 months that you have got. You have to utilize it. तो रही बात टाइम की, तो और मैं वर्क करता नहीं था. I was not a working professional. I was staying at my home in Ghaziabad. और चूँकि पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट था, तो even if I were to ask for a tea at 11 in the night, tea was given to me. कपड़े धोने का मुझे इशू नहीं था, खाना खाने का इशू नहीं था, बाहर जाने का इशू नहीं था. I had a car. So जब उन सब चीज़ों से मैं मुक्त हो गया, तो मेरे पास केवल एक ही काम था दिन भर में, पढ़ाई करना, और दूसरा काम था नहाना धोना और मतलब फ्रेश हो जाना, और मतलब आके बैठ के चाय पी ली, यू फील फ्रेश्ड, और थोड़ा सा मतलब पढ़ लिया तो आधे घंटे आपने रेस्ट ले लिया, बस इतना ही मेरा वो था. अपार्ट फ्रॉम दैट द अदर टाइम वर डिवोटेड टू स्टडिंग. तो इन 3 महीने में तो मैंने कुछ नहीं किया. और अगर आप 3 महीने डेडिकेशन से पढ़ रहे हो तो दैट सिलेबस वुड सीम स्मॉल. वही है कि जो पढ़ता नहीं है, जिसको लग रहा है कि मतलब सिलेबस इज ह्यूज फॉर देम इफ दे आर नॉट एबल टू गिव एडिक्वेट टाइम फॉर दैट. अगर आप ऑनेस्टली पढ़ रहे हो, सिलेबस को देख के पढ़ रहे हो कि क्या क्या सिलेबस की रिक्वायरमेंट है और क्या क्या सिलेबस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप यू विल बी एबल टू कवर द सिलेबस. नो डाउट द सिलेबस इज वास्ट. पेपर 1, 2, 3, 4, देन यू हैव एसे, देन यू हैव ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2, बट इट्स द सेम फॉर एवरीवन. पर कुछ लोग क्लियर कर लेते हैं, कुछ नहीं क्लियर कर पाते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन हाउ प्रिसाइजली और हाउ वेल यू हैव अंडरस्टूड द सिलेबस. तो वही है कि आप स्लॉट डिवाइड करो, कि जैसे मेरा था, एक स्लॉट वाज फॉर ऑप्शनल, एक स्लॉट वाज फॉर जनरल स्टडीज, एक स्लॉट वाज फॉर करंट अफेयर्स, और उसको थोड़ा फिक्स कर लो. फिक्स का मतलब ये है कि तीनों चीज़ें पढ़नी है. अब कितना पढ़ रहे हो वो आप अपने हिसाब से देख लो, जो आपका वीक स्पॉट है. फॉर मी, आई वॉज नॉट एबल टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन ऑप्शनल लास्ट ईयर. मेरे 251 था. मैंने सोचा कि ऑप्शनल पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा क्योंकि उसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो मैंने ऑप्शनल पे फोकस ज़्यादा किया. तो इस तरीके से मैं तीनों चीज़ों को लेके चल रहा था. अब ऐसा थोड़ा ना है कि आप पूरे दिन केवल ज्योग्राफी पढ़ोगे, पूरे दिन केवल जनरल स्टडीज़ पढ़ोगे, या पूरे दिन करंट अफेयर्स पढ़ोगे. और दूसरी चीज़ जो सिलेबस मैनेज करने में बहुत काम आती है, वो है रिस्ट्रिक्टिंग योर सोर्सेज, व्हाट यू आर रीडिंग फॉर योर सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केवल एनसीईआरटी से पढ़िए. मैंने एनसीईआरटी प्लस तमिलनाडु बोर्ड बुक्स पढ़ लिए थे क्योंकि मैं तो थर्ड अटेम्प्ट में था. बट फॉर समबडी अ बिगिनर, आई वुड सजेस्ट स्टिक टू वन सोर्स. इफ यू वांट टू रीड ओनली तमिलनाडु बोर्ड बुक्स, रीड ओनली देम. आपको कोई टेंशन नहीं थी, आप घर में थे, चाय आराम से मिल जाती थी, कपड़ा धोने का टेंशन नहीं, तो कितना घंटा पढ़ते थे आप? ये भी एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि सर, फॉर हाउ मेनी आवर्स डू आई नीड टू स्टडी टू बिकम एन आईएएस? 20-22 घंटे एक दिन में? 20-22 घंटे तो कोई नहीं पढ़ता सर. लेकिन ऐसा था कि देखिए, अगर आप सोएंगे नहीं, आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे. देखिए, 6 घंटे सोना इज वेरी गुड थिंग, पर अगर मैं 6 घंटे सोता था तो मुझको दोपहर में नींद आती थी. फिर तो मैंने सोच रखा था कि 6 से 7 घंटे तो सोना ही सोना है, सो दैट यू डोंट फील स्लीपी. और मेरी आदत नहीं है दोपहर में सोने की, तो दैट वाज एन एडेड एडवांटेज फॉर मी. तो देखिए, पढ़ने का कितना था कि मैं मॉर्निंग में क्या करता था कि मैं मॉर्निंग में लगातार 5-4 घंटे में खींचता था कि वो मॉर्निंग में मैं बिल्कुल फ्रेश होके, मतलब सो करके रेस्ट करके उठाऊँ. आई हैव टू स्ट्रेच इट 4 to 5 hours. तो मॉर्निंग में पहला स्लॉट ही मेरा वॉज फॉर 5 to 6 hours. आई यूज्ड टू स्टडी दोज मैनी आवर्स. उसके बाद मैं 1 घंटे का ब्रेक ले लेता था. एंड आफ्टर दैट फिर मेरा होता था 4 घंटे का GSVS वाला सेक्शन, उसके बाद 3 घंटे का न्यूज़पेपर. सो ये थोड़ा वेरिएबल थे, कभी 6 घंटे पढ़ लिया सुबह उठ के, कभी 4 घंटे पढ़ लिया. पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ आवर्स दैट आई स्टडीड, इट वुड बी अराउंड 12 आवर्स से थोड़ा ज़्यादा हो जाता था. अब ये चूंकि मेरा थर्ड अटेम्प्ट था और 3 ही महीने बचे थे, और मैंने इसके पहले 7 महीने 9 महीने तक किताबें भी नहीं उठाई थी. फॉर मी आई हैड टू वर्क रियली हार्ड इन दिस अटेम्प्ट, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट हमारा जनवरी 21 को हमारा मेंस था. उसके बाद मैंने कोई बुक पढ़ी नहीं थी, तो मेरे लिए तो बिल्कुल सब कुछ ही ऑल ऑफ अ सडन था. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा नाम आ जाएगा लिस्ट में. बट व्हेन टाइम्स बिकम टफ, यू हैव टू डू हार्ड थिंग्स ना. right. तो वो हार्ड टाइम था, तो आई हैड टू वर्क. तो मेरा 12 घंटे से थोड़ा ज़्यादा एवरेज होगा, पर आई थिंक 12.5 hours. दैट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ टाइम आई वाज स्टडिंग. यही था बस.
और प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या रखी थी आपने? जैसे कई बार यहाँ पर भी एक बहुत अधिक मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स में। मैं बहुत बच्चों से मिलता हूँ, सर पहले प्रीलिम्स निकलेगा तब तो मेंस पढ़ूंगा। सर कुछ लोग कहते हैं कि मेन और प्रीलिम्स साथ करिए, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होना चाहिए। बीइंग टॉपर ऑफ दिस एग्जाम, आपका क्या टेक है इस पर? मेरा तो यही टेक है कि एटलीस्ट टिल 2-3 मंथ्स बिफोर प्रीलिम्स प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि अगर आप केवल प्री पढ़ रहे हो 9 महीने 10 महीने, तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। आफ्टर प्री आपके पास 3 महीने बचेगा, आप कैसे सब कुछ पढ़ के रिवाइज करके टेस्ट भी लिख लोगे? ये तो नहीं हो पाएगा। सो एटलीस्ट 2-3 मंथ्स बिफोर प्रीलिम्स आपका फोकस होना चाहिए एन इंटीग्रेटेड स्टडिंग, जिसमें आप अपना मेंस का सिलेबस कवर करिए, ऑप्शनल का सिलेबस कवर करिए, प्रीलिम्स का भी सिलेबस कवर करिए। मोर और लेस प्रीलिम्स और मेंस का कई मतलब कुछ टॉपिक्स को छोड़ दें, सिलेबस वो हो जाता है। जैसे प्रीलिम्स में आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है, एनवायरनमेंट भी पढ़ना है, साइंस एंड टेक चलिए एक टॉपिक है, वो भी मेंस के लिए आप पढ़ते ही पढ़ते हो। करंट अफेयर्स तो ऑलमोस्ट सेम ही हो जाता है, पर थोड़ा सा क्या है कि प्रीलिम्स में आपकी प्रिपरेशन थोड़ी फैक्ट बेस्ड हो जाती है। आप उस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सोचते हो, आप थोड़ा सा जो फैक्चुअल डेटा है उस पर ज़्यादा फोकस करते हो। बेसिकली प्रीलिम्स में ये आपका फोकस रहता है। तो लेकिन एटलीस्ट 2-3 मंथ्स बिफोर प्रीलिम्स योर फोकस शुड बी एन इंटीग्रेटेड स्टडिंग। आफ्टर दैट स्पेशली जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हैं उनके लिए तो मैं ये बोलूँगा कि 2.5 महीने तो मिनिमम आप निकाल के रहिए प्रीलिम्स के लिए, जिसमें आपका फोकस वुड बी ऑन प्रीलिम्स। आफ्टर प्रीलिम्स अगर आपने पढ़ा है, इंटीग्रेटेड स्टडिंग करिए, तो आपको 10 दिन लगेगा टू गेट बैक इनटू द मेंस मोड। और उसके बाद आप 3 महीने केवल आपको मेंस फोकस करना है एंड यू हैव टू राइट टेस्ट्स एंड एवरीथिंग, यू हैव टू डू दैट। तो मैं तो बोलूँगा इंटीग्रेटेड, आफ्टर दैट फोकस ऑन प्रीलिम्स एंड आफ्टर दैट वंस यू हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स यू शुड फोकस ऑन योर मेंस। ग्रेट। अच्छा, you divided your day like few hours or some time for current affairs, some time for GS, some time for optional. अब हम current affairs पे आएं तो it's a vast ocean, and as you said you used to allot 3 hours for newspaper. How many newspapers one should study, and what about the tricks of making notes, or should we make note? रही बात न्यूज़पेपर की, मैं 2 न्यूज़पेपर पढ़ता था, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अगर आपको एक बात बताऊं, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया है 12 अक्टूबर को लास्ट ईयर, आफ्टर 1 डे आफ्टर टेकिंग अ रेस्ट आफ्टर प्रीलिम्स। 11th को मैंने रेस्ट लिया, 12th आई स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर। उसके पहले जनवरी 2020 से मेरे घर में न्यूज़पेपर नहीं आ रहा था। आई हैडंट रेड अ सिंगल न्यूज़पेपर फ्रॉम जनवरी 2020। कोविड के पहले से मैंने न्यूज़पेपर नहीं रीड किया था, बट दिस टाइम आई रियलाइज्ड द मिस्टेक ऑफ नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर्स। सो मैं 2 रीड करता था, इंडियन एक्सप्रेस एंड मिंट, और उसका कोई ट्रिक नहीं था। मैं नोट्स नहीं बनाता था, और नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं, बट आई यूज्ड टू रीड देम वेरी थरली। अब मैं 3 घंटे 2 न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, देन आई यूज्ड टू रीड देम वेरी वेरी सीरियसली, वेरी मतलब पूरा 1.5 घंटे का टाइम, ये नहीं कि 1.5 घंटा मस्ती वस्ती में सब निकाल करके 1.5 घंटा आया अखबार। when I am reading when I am giving 1.5 hours for newspapers, which means all those 99% time was spent for reading this article completely, that article completely। और मुझे लगता था कि कुछ इंपॉर्टेंट है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। न्यूज़पेपर में इतनी एम्प्टी स्पेस होती है, आप कहीं पे भी लिख लो, ताकि एटलीस्ट आपको मतलब आपके ब्रेन को ये पता चल जाएगा कि हाँ मैंने ये लिखा है। जैसे अब इन्फ्लेशन का फिगर आया है लिखा हुआ 5%। मिंट में एक खास बात होती है कि मिंट में डेटा आता है काफ़ी, तो आप अखबार के ऊपर लिख लो 5%, just to inflation is 5%, interest rate is 4%, repo rate is this %, just for the sake of। उसके बाद आप भूल जाओ कि आपने रटने की कोशिश करी, नहीं रटने की कोशिश करी, यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़पेपर। अगर वो इंपॉर्टेंट होगा, अगर आपको लग रहा होगा वो इंपॉर्टेंट, तो आपको याद आ जाएगा। पर अब उसके लिए नोट्स बनाओ, हमारे पास इतना टाइम तो रहता नहीं है कि उन नोट्स को रिवाइज करो। तो नोट्स मेरे हिसाब से तो नहीं बनाने चाहिए न्यूज़पेपर्स के अब, लेकिन दिस इज़ अ वेरी पर्सनल ओपिनियन। इवन मैं तो ये कहूँगा कि कौन कौन से न्यूज़पेपर रीड करने हैं, 1 रीड करना है, 2 न्यूज़पेपर रीड करने हैं, दैट इज़ अ वेरी पर्सनल चॉइस। इट शुड बी अपॉन द कैंडिडेट। अगर किसी को लगता है हिंदू इज अ गुड न्यूज़पेपर, यू रीड इट। मेरे को नहीं अच्छा लगता है हिंदू, तो मैं नहीं पढ़ता था, मैं इंडियन एक्सप्रेस और मिंट पढ़ता था इसीलिए। अब किसी को एक ही पढ़ना है, 1 पढ़े, 2 पढ़ना है, 2 पढ़े, 3 पढ़ना तो मुझे लगता है थोड़ा सा एक्सेसिव हो जाता है। बट आई थिंक यू कैन गो टिल 2, और यू कैन डू वन थिंग, दैट बिफोर प्रीलिम्स यू आर रीडिंग 1 न्यूज़पेपर, आफ्टर फॉर मेंस यू कैन स्टार्ट रीडिंग 2 न्यूज़पेपर्स। ये हो सकता है। और न्यूज़पेपर में तो मुझे नहीं लगता कि नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि मैंने बनाने की कोशिश करी थी एक बार बहुत पहले, एंड विद इन 15 डेज वो इतनी मोटी कॉपी हो गई थी जिसको पढ़ने का मन भी नहीं करता। दैट इज एन एडिशनल सोर्स ऑफ स्ट्रेस, यू शुड नॉट डू दैट। सिंपल तरीका ये है कि एज ए लेमैन कहते हैं ना, ओकम्स रेजर, द बेस्ट सोल्यूशन इज द सिंपलेस्ट सोल्यूशन। रीड करो और भूल जाओ कि आपको कुछ याद है कि नहीं है। आपको क्या याद है क्या नहीं याद है वो आपको नहीं पता होता है, until unless you write टेस्ट में आपको ऐसा लगेगा कि मुझको यार ये याद नहीं था, लेकिन आप टेस्ट में तो लिख के आ गए। तो टेस्ट इज द बेस्ट बैरोमीटर
फॉर मेजरिंग आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। आप न्यूज़पेपर रीड करो और भूल जाओ कि मुझे क्या याद हो रहा है या नहीं याद हो रहा है, उसका स्ट्रेस ले रहे हो, बस दैट्स इट। गुड। अच्छा, व्हेन आई लुक एट योर मार्क्स इन ऑप्शनल पेपर, सिंपली ब्रिलियंट, 306 नंबर आपको आए। कैसे आपने इम्प्रूव किया 251 से 306? ज्योग्राफी में इतना नंबर आना थोड़ा मुश्किल है। और दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, हाउ वन शुड सेलेक्ट एन ऑप्शनल, व्हाट पैरामीटर शुड बी अप्लाइड फॉर द सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल? तो पहले तो आप बताएं कि आपका सीक्रेट क्या था जो इतना अच्छा नंबर आपके पास आया। पहले तो आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि वेयर डिड यू गो रॉन्ग। मैंने इसके पहले एक टेस्ट नहीं लिखा था ज्योग्राफी का और मेरे 251 थे, सो आई थॉट कि थोड़ा सा राइट डायरेक्शन मेरा पैर चला गया है। सो आई जस्ट हैड टू फिगर आउट वेयर माई मिस्टेक वॉज। और मेरा क्या था, पहले अटैम्प्ट में मेरा पेपर 1 बहुत बड़ा मैसअप हो गया था, अच्छे से बहुत गंदा गया था मेरा पेपर। तो मैंने रियलाइज़ किया कि ज्योग्राफी में स्कोप है मार्क्स इंप्रूव करने का। सो वही मैंने 10 टेस्ट लिखे ज्योग्राफी के, बहुत सारे टेस्ट लिखे मैंने। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई हैड स्टॉप्ड राइटिंग जीएस टेस्ट बिकॉज आई वांटेड टू फोकस ऑन राइटिंग ऑप्शनल टेस्ट। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया अपने सोर्सेज को, कोई भी, जैसे मेरा पहले जियोमॉर्फोलॉजी का सोर्स यहाँ बैठा था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, उनको सबको मैंने पेज फाड़ फाड़ करके एक कंसोलिडेटेड कॉपी बना ली नोट्स से। लेकिन अगर कोई टॉपिक कवर नहीं हो रहा है तो सविंदर सिंह से नहीं पढ़ना है, सविंदर सिंह से पेज ही फाड़ के चिपका देना है उसमें। DS लाल की किताब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें एक डायग्राम बहुत अच्छा था ऑन आई थिंक ट्रॉपिकल साइक्लोन का डायग्राम, उससे फाड़ के चिपका देना है। पिछली बार मेरा रिवीजन नहीं हो पाया था तो इस बार मैंने 4, 5, 6 बार रिवाइज कर लिया था। दूसरा मैंने टेस्ट 10 लिखे, जैसे मैंने बताया 10 टेस्ट लिखे एंड दोज 10 टेस्ट वर मोर देन सफिशिएंट फॉर मी टू हेल्प अंडरस्टैंड। बहुत, अब जब आप 10 टेस्ट लिखते हो यू आर अटेम्प्टिंग सो मेनी क्वेश्चंस और ये लाजमी है कि उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में आए। मेरे साथ ये हुआ, इंडियन ज्योग्राफी के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो गए उन टेस्ट से ही। तो आई हैड लॉट ऑफ टाइम कि उनको इम्प्रूव भी कर पाया मैं, उन क्वेश्चन को कैसे लिखना है तो मैं परफेक्शन के साथ लिख पाया। और तीसरी चीज़ वही है कि आपको अपना प्रेजेंटेशन बेटर करना है। जैसे मैंने डायग्राम्स बहुत यूज़ किए, मैंने केस स्टडीज़ यूज़ करी, मैंने रीजनल पर्सपेक्टिव बनाया कि अगर आप केवल ईस्टर्न इंडिया की बात कर रहे हो तो आप केवल ईस्टर्न इंडिया का मैप बना रहे हो, यू आर नॉट ड्राइंग द मैप ऑफ इंडिया। दैट डज नॉट लुक अ वेरी मैच्योर जोग्राफर्स आइडिया ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा लिखो। और फिर दुनिया भर की आप नॉलेज, अगर आप कोई करंट अफेयर्स मैगजीन फॉलो कर रहे हो या आप कोई न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो, उन सब से जो डेटा मिल रहा है आप अपने आंसर्स में डालो। और यही सब टेक्निक मैंने जब इस्तेमाल करी, आई वॉज एबल टू इटरेट इट 10 times in 10 tests। तो उसके बाद वो नेचुरली आपके पेपर में भी आ जाएगा। दिस वॉज माई सोल स्ट्रैटेजी टू हेल्प कॉन्कर, वही कि कंसोलिडेट कर दो सोर्सेस को, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो और टेस्ट करो एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल, एज मेनी टेस्ट एज यू कैन राइट। मैंने 10 किए थे, बहुत होते हैं 10 टेस्ट। और उसके बाद अपना प्रेजेंटेशन का तरीका बदलो और दुनिया की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जाम्पल इन एवरी क्वेश्चन यू हैव टू राइट एग्जाम्पल, इन ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन अगर पॉसिबल है तो डायग्राम बना दो, और इन एवरी क्वेश्चन गिव अ रीजनल पर्सपेक्टिव। और अपनी जो भी सोर्सेज आप पढ़ रहे हो, वेदर यू आर रीडिंग फॉर ज्योग्राफी और नॉट, अगर उसका डेटा या फैक्ट फिगर आप अपनी ज्योग्राफी के ऑप्शन में डाल सकते हो, आप डालो। इस तरीके से था, बड़ा नेचुरल वे में गया, मेरे मार्क्स इंप्रूव होते गए टेस्ट में। सो आई बिकेम कॉन्फिडेंट, माई सर टोल्ड मी कि यू आर राइटिंग इन द राइट डायरेक्शन, सो आई फॉलोड दैट थिंग। और हाउ शुड वन चूज ऑप्शनल, इट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने चूज भी नहीं किया। मैंने कॉलेज से निकला, मैंने कहा ज्योग्राफी, दैट्स इट। फिर वहीं डिसाइड हो गया कि ज्योग्राफी लेना है। A lot of people look at PSIR, sociology, economics, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स में था। तो मेरा तो ये था कि कॉलेज के 2018 में कॉलेज एंड हुआ, गेट के बाहर निकले ज्योग्राफी, दैट वाज माय थिंग। मैंने सोचा भी नहीं था। अब पता नहीं, कहते हैं कि कभी कभार सबकॉन्शियस से कोई कॉल आती है एंड यू आंसर दैट कॉल, दैट वाज द ज्योग्राफी कॉल फॉर मी। Geography, I'd always loved geography as an optional. Maps were my favorite thing. Travel and tourism, I liked it very much. और देखिए, जो अगर मैं कोई क्राइटेरिया बोलूँ, अगर किसी को सेट करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ विच वन शुड चूज एन ऑप्शनल, इट शुड सोनली बी योर इंटरेस्ट। क्योंकि अब जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लो, सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर कर लो, थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर कर लो, कुछ नहीं पता आपका। और अगर आप थर्ड अटेम्प्ट तक जा रहे हो तो आप वही ऑप्शनल को कैरी ऑन कर पाओगे जो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। जैसे लास्ट ईयर जहां तक मुझे पता है ज्योग्राफी में हाईएस्ट 287 था, एंड लॉट ऑफ पीपल दे डोंट टेक सब्जेक्ट जिसमें स्कोर कम आता है। वो कहते हैं इसमें स्कोर ही नहीं आ रहा है तो वी विल चेंज आवर ऑप्शनल। ऑप्शनल में क्या नंबर है वो डिपेंड करता है कि नॉट व्हाट अदर पीपल आर स्कोरिंग बट व्हाट अंडरस्टैंडिंग यू हैव डेवलप्ड ओवर द इयर्स। अब आप 3 साल, अब जैसे मैं आपको बताऊं, जब मेरा लास्ट ईयर नहीं हुआ सिलेक्शन, तो मैंने यही क्वेश्चन बोला अपने पापा से, मम्मी से भी बोला था कि मैं अपना बदल दूंगा ज्योग्राफी। दिस वाज थॉट दैट कम्स टू योर माइंड। अब आपका दिमाग इधर उधर दौड़ रहा है कि क्यों नहीं हुआ। तो उसमें एक थॉट ये भी आया
उन्होंने बोला कि यार तुम्हें 2 साल तो पढ़ाई करी है अच्छी, योर स्कोर इज नॉट, ठीक है बहुत गंदा नहीं था, मतलब 251 इज अ बैड स्कोर, नॉट अ गुड स्कोर दैट कैन हेल्प यू गेट योर सिलेक्शन, पर उन्होंने बोला कि यू आर इन द राइट डायरेक्शन। तो उन्होंने बोला कि इसको मत करो, अब तुम कोई भी ऑप्शनल नया लोगे तो तुम्हें बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट, तुम्हें ABCD से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो आई थॉट नहीं यार अब नहीं करना है, अब अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो मैंने नहीं बदला। पर वही है कि, और दूसरा ज्योग्राफी का फायदा क्या था कि उसका GS में कवरेज अच्छा था, इसलिए मेरे पेपर 1 में भी 120 मार्क्स हैं, जनरल स्टडीज पेपर 1 में, बिकॉज ज्योग्राफी इज आस्क्ड सो मच। तो इन सब फैक्टर्स के होता है, वरना मैं तो ये कहूँगा कि देख लीजिए कि आपका मतलब GS में कवर हो रहा है नहीं हो रहा, दैट्स एन एडेड एडवांटेज। योर इंटरेस्ट शुड बी द प्राइमरी मोटिव। और तीसरा तो मैं ये कहूँगा कि आपको कैसा लग रहा है, उसका सिलेबस कवर है, टीचिंग कोर्सेज मतलब टीचिंग मटेरियल अवेलेबल है, या मार्केट में उसका स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, ये सब फैक्टर्स तो सेकेंडरी हो जाते हैं, बट द सोल थिंग इज योर इंटरेस्ट। आई थिंक इंटरेस्ट नहीं है, मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा ज्योग्राफी में, तो मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मार्केट में टीचर, टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको मैं एक चीज़ बताऊं, जब मैं 18 में ग्रेजुएट हुआ हूं, जब मैंने ज्योग्राफी ऑप्शन चूज किया है, मुझे पता भी नहीं था कि मार्केट में कौन आर द फेमस फैकल्टी फॉर ज्योग्राफी, मुझे इतना तक नहीं पता था, मैंने सिलेबस तक नहीं देखा था तब एक बार ज्योग्राफी का, बट दिस वाज अ सबकॉन्शियस कॉल दैट केम फ्रॉम माय मतलब इंटरनल सेल्फ से आई कि यार ज्योग्राफी लेना है। अब उसमें कोई इफ एंड बट नहीं, मैंने कंपेयर नहीं किया सिलेबसेस को कि PSI को कंपेयर कर लूं ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी लेना है, ज्योग्राफी लेना है, एंड इवेंचुअली इट पेड मी ऑफ। लॉयल्टी पेज इट्स dividend. No, this is one thing that I can say about this. Oh, great, it paid great dividend. Acha Yasharth, I was going through your mark sheet, or I request you to reflect upon the day you were writing your GS paper 4. Because toppers' marks are usually different. What mistakes do you think? Like today, sitting today, getting top rank. Now, if you reflect upon that day when you were writing paper 4, what mistakes do you think that you committed, or that could have been avoided? मुझे अब लगता है कि 2-3 मिस्टेक्स मेरे से हो गई। पहली मिस्टेक कि मैंने थ्योरी पार्ट को अपने केस स्टडीज से पहले अटेम्प्ट कर दिया। नाउ इफ आई वर टू गिव एडवाइस टू समबडी, आप पहले केस स्टडीज कर लीजिए, बिकॉज यू आर फ्रेश। ओके, और मैं तो ये तो कहता हूँ कि जब वो देते हैं आंसर शीट तो आपके पास 5 मिनट होता है, तो 5 मिनट में आप एटलीस्ट एक केस स्टडी तो रीड ही कर सकते हो, दैट यू विल सेव, दैट वे यू विल सेव टाइम। वो चीज़ नहीं हो सकती है थ्योरी वाले क्वेश्चंस में, तो आप वो कर लो। तो फर्स्ट एडवाइस तो यही है कि आप पहले केस स्टडी वाला करो। मैंने पहला पार्ट कर दिया, एंड बाय द टाइम आई केम टू केस स्टडीज आई वाज टायर्ड। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि डू एज मेनी टेस्ट एज पॉसिबल। इसके लिए टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, बिकॉज दिस इज अ लेंदियर पेपर एज कम्पेयर टू पेपर 1, 2 एंड 3। इवन ऑप्शनल पेपर से भी लेंदियर है, क्योंकि इसमें शायद 60-65 पेजेस होते हैं टोटल उसमें, तो ये थोड़ा सा लंबा पेपर भी होता है। तो आपको इसके लिए खूब रेगुलर प्रैक्टिस आनी चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक मैंने बहुत फोकस नहीं किया, मैंने अटेंशन नहीं दिया, मुझे लगा दिस इज अ वेरी जनरल पेपर। तो मेरे लगा ये 3 मिस्टेक्स थी, इफ आई कैन टेल समबडी टू। और दूसरी चीज़ पैनिक नहीं होना है। मैंने क्या हुआ कि जब मैंने थ्योरी पार्ट करके आया, आई ऑलरेडी स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन द थ्योरी क्वेश्चन, सो बाय द टाइम आई स्टार्टेड डूइंग माय फर्स्ट केस स्टडी आई वॉज पैनिकिंग अ लिटिल, और वो पैनिक थोड़ा सा बढ़ गया बाय द टाइम आई रीच द 4th and 5th क्वेश्चन। सो मुझे लगता है कि वो मैंने 4th, 5th, 6th क्वेश्चन आई डिड नॉट डू वेल। इवन मैंने 1-2 टेस्ट दिए थे एथिक्स वाले, उसमें मेरे 105, 106 नंबर थे। इनफैक्ट लास्ट ईयर माय मार्क्स वर 101, दिस टाइम दे रिड्यूस्ड बाय 2 मार्क्स टू 99। तो वही है कि पैनिक नहीं होना है। तो ये सब मिस्टेक्स मैंने करी थी, एंड आई वुड एक्सपेक्ट एवरीवन एल्स नॉट टू डू दिस मिस्टेक, क्योंकि इसमें तो बहुत अच्छा नंबर आता ही है। राइट, ग्रेट, ब्रिलियंट आंसर एंड ब्यूटीफुली समराइज्ड। अच्छा, एक जनरल क्वेश्चन, ये तो एथिक्स GS पेपर 4 वाज स्पेसिफिक टू यू। नाउ विथ रिगार्ड्स टू GS पेपर 3, I have come across hundreds of mark sheets. How to cope up with the challenge of GS paper 3? Because when we look at the marks in GS paper 1, paper 2, paper 4, students are scoring differently. But when it comes to paper 3, we find everyone is crawling to get across 100. Right? So is there any specific challenge of paper 3, or what mistakes as a student as a general they commit? I think even I crawled and failed. I have 91. Last year I had 82. So to be very honest, I am not the perfect person to answer this question. क्या आता है क्या नहीं आता। इनफैक्ट अगर मेरे से किसी ने एग्जाम से पहले पूछा होता तो मेरे सबसे अच्छा पेपर तो पेपर 3 गया था। I thought it was the best paper of mine amongst all the GS papers. पर मुझे लग रहा है कि they're asking very general questions from current affairs, but they're expecting a little more advanced answers. मुझे ऐसा लग रहा है they want very specific, not very general points.
मेरा तो यही परसेप्शन है. अपार्ट फ्रॉम दैट कैसे पढ़ना है, इट इज़ ऑल अ करंट बेस्ड पेपर. तो वही है कि आप सिक्योरिटी वाले टॉपिक्स के भी नोट्स बना लीजिए, इन्वायरमेंट आप किसी भी करंट अफेयर्स मैनुअल से आप पढ़ सकते हो, और जो एग्रीकल्चर वाले टॉपिक्स हैं या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इनके हर कोई नोट्स बनाता है. इकोनॉमी वाले टॉपिक्स के भी, लिबरलाइजेशन वाले टॉपिक्स के नोट्स बना लेते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट वही है, न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ना है. मैंने तो तब भी बहुत अच्छे न्यूज़पेपर पढ़े थे. आई ट्राई टू गिव एग्जांपल्स इन ऑल द क्वेश्चंस, बट इवन आफ्टर दैट आई हैव एंडेड अप विद अ स्कोर ऑफ 91. So to be very honest, I'm not exactly sure what UPSC is expecting. Maybe they want a bit more specific to the point answers, right, or a bit more analytical answers, a bit more थोड़ा सा scientific, जैसे बहुत साइंस एंड टेक वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, they don't want general answer. They want a more technical way of answering questions. So ये हो सकता है, but again पेपर 3 में क्या करना है क्या नहीं करना, it's very difficult to understand. Great. अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट है कि according to you, what is the ideal phase for a student to start his journey or his preparation? Before graduation, after graduation, or even after doing graduation, do I go for, you can say, some other degree, higher degree? Like you have this experience of civil services examination, and you first, second attempt and third attempt in proper, so you know it very well. So what would be your suggestion? What is the ideal phase to start the preparation? I think the ideal phase would be during college itself. Okay. I think आप कॉलेज में डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है, तो आप एनर्जी इसको उसी तरीके से करो. Right. When you already have to do something, और आप अगर उस पर कॉलेज के बाद आते हो तो आप कॉलेज का टाइम इस्तेमाल कर सकते थे. और अगर आप कॉलेज में डिसाइड कर लेते हो तो आपके लिए आसान है पढ़ना. मैं तो स्कूल में डिसाइड कर लिया था, तो मैं कॉलेज में ही पढ़ाई करने लगा था. और तो लेकिन आई थिंक द बेस्ट फेज इज ड्यूरिंग कॉलेज इटसेल्फ. तो आप अपनी एनर्जीज को उसी तरफ डाइवर्ट कर दो. अगर कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो आप उसको मतलब देख लो, आप सिलेबस को देख लो यूपीएससी के कि क्या पूछ रहे हैं, कैसे पूछा जाता है, तो क्या आपकी कॉलेज स्टडीज विल कम टू दैट यूटिलाइजेशन. तो आप उसी पर्सपेक्टिव से, उसी नज़रिए से आप अपने कॉलेज की पढ़ाई को करने लगो. और दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन, रही बात पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो हम लोग का एक पढ़ाई वाला जो होता है यूपीएससी वाला, वो एक पोस्ट ग्रेजुएशन की तरह ही है. इतना सारा सिलेबस होता है, इट्स लाइक वी आर डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन. बट मुझे पर्सनली आई डिड नॉट वांट टू गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन. आई वांटेड टू गो, बस वही है कि 2 साल बाद आप वही चीज़ करोगे यूपीएससी में. और ऐसा भी नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन गिव्स सर्टेन अमाउंट ऑफ सर्टेनिटी टू योर सेलिब्रेशन, टू योर सिलेक्शन. ऐसा नहीं है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो या पीएचडी हो या एमफिल हो तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है, या द परसेंटेज ऑफ यू, द probability of you getting selected in UPSC it increases somehow. ऐसा नहीं होता है. तो मैंने सोचा बेसिक डिग्री है, बहुत पढ़ लिया है वहाँ तक, अब उसके बाद ही करेंगे. तो मैं पर्सनली आई डोंट प्रेफर गोइंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन. ऑब्वियसली नाउ व्हेन यू आर इन सर्विस you can go for post graduation. Now you can go for it, but I think before that I think 21, 22, 23 are some of the most energetic years of your life. I think अगर आप उसको, और UPSC requires very demanding preparation, so अगर आप उन दो का मेल कर लेते हैं कि when you are most energetic and you have to do the highest level of preparation, तो वो तो आपको help करेगा. Good. अच्छा, you have an excellent academic background. मेरा वैसा नहीं है. मैंने स्टार्ट सोचा है, लेकिन मैं मीडियोकर हूँ. मैं 10th में भी मुझे ठीक ठाक मार्क्स आए, 12th में भी बहुत अच्छे कॉलेज से मेरी पढ़ाई भी नहीं हुई है. सो मेरे लिए भी कोई चांस है क्या? एकेडमिक बैकग्राउंड कैसे अफेक्ट करता है या नहीं करता है? आई थिंक एकेडमिक बैकग्राउंड डज नॉट इम्पैक्ट. अगर ऐसा करता तो मैं फर्स्ट टाइम में मेरा हो जाना चाहिए था. राइट. अगर ऐसा होता तो मेरा फर्स्ट टाइम में हो जाना चाहिए. बट इवेंचुअली इवन यूपीएससी हैज़ अ वे ऑफ हम्बलिंग or equalizing everyone. There are many people who come from जो state के boards होते हैं, they've come from very poor rural backgrounds, they were able to clear it in the first attempt itself. And there are many people who come from Stanford, और वहाँ से भी आते हैं, IIT बॉम्बे से भी आते हैं, IIT कानपुर से भी आते हैं, but many of them take at least 2-3 attempts to clear. तो मेरे हिसाब से background का matter नहीं होता. In fact, if I can give you an example from this year, I think Laksh Anand rank 101. He comes from a very poor background. वो government schools में पढ़ा है दिल्ली के, and he's able to get a good rank of 101 this year. He'll get IFS, that was his first preference. But I think he should be a case study. I think उनकी stories तो अरविंद केजरीवाल ने भी share करी थी on his YouTube channel about how this guy from a very poor and rural background, from not a very good academic background, he ended up becoming IFS. So ऐसा नहीं है कि background affects anyone. Hard work और consistency के साथ वो hard work अगर आप कर ले रहे हो, wherever you come from, whoever you may be, you will be able to clear UPSC. Good.
अच्छा, एक बहुत ही आपको लगे बहुत ही सिली सा क्वेश्चन है कि मुझसे फैक्ट्स याद नहीं होते, इतनी ज्यादा यूपीएससी में फैक्ट्स होते हैं, आई एम गुड एट अंडरस्टैंडिंग बट आई कैन नॉट मग अप फैक्ट्स, सो हाउ टू डील, बिकॉज वी हैव टू साइट सो मेनी फैक्ट्स, डेटा, फिगर्स, तो बच्चे कई बार डिमोटिवेट होते हैं। क्या यूपीएससी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना नहीं होगा, या हम कैसे इस चैलेंज को मैं कोप करूं? I think a very wise mix of facts and theory is the way to go forward in UPSC. Right. अब ऐसा नहीं है केवल आपने फैक्ट्स डाल दिए तो आपको नंबर मिल जाएगा, या केवल आपने फैक्ट्स छोड़ दिए बिल्कुल ही तो आपको नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। बट अगेन फैक्ट्स विल ऐड वैल्यू टू योर आंसर्स। और देखिए, हमें बहुत चीजें लगती है कि हमको याद नहीं है, लेकिन हमको कैसे पता वो याद है या नहीं है? द बेस्ट पैरामीटर मैंने ऐसे बोला भी था कि वो है टेस्ट। हम जब टेस्ट लिखते हैं तो हमको समझ में आता है कि हमको क्या याद था, क्या याद नहीं था। अ लॉट ऑफ टाइम्स वी थिंक वी डोंट रिमेंबर अ फैक्ट, बट व्हाइल राइटिंग इट एज एन एग्जांपल हमें याद आ जाता है। राइट। सो आई थिंक डूइंग मोर एंड मोर टेस्ट रेगुलरली मेंस फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, ये मेरी मिस्टेक थी। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स के टेस्ट नहीं किए थे, सेकंड अटेम्प्ट में मेंस के टेस्ट नहीं किए थे। आई वाज एबल टू रेक्टिफाई बोथ द मिस्टेक इन माय थर्ड अटेम्प्ट, सो मेरे रैंक आ गया। पर फैक्ट्स रखना मुझे भी बहुत टफ लगता है, बट देयर इज नो अल्टरनेटिव टू इट। और मेरे लिए सबसे आसान तरीका ये था कि मैं रेगुलरली टेस्ट लिख रहा था, कोई भी फैक्ट अगर आता था मेरे पास तो मुझे याद भी नहीं है या याद है, वो उसी में प्रूव हो जाता था। अगर मैं उसको लिख ले रहा हूँ तो हाँ, आई एम एबल टू रिमेंबर दैट फैक्ट वेल। और उससे क्या होगा, अगर आपने एक टेस्ट लिखा है और आपको वो फैक्ट याद आ गया जो आपको लग रहा था आपको याद नहीं है, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाता है, यार फिर तो मुझे बहुत सारे याद होंगे। और वो आपको एक अपने आप को एक सेल्फ कहते हैं ना, सेल्फ अपने आप को बूस्ट देते रहना है बाय राइटिंग मोर एंड मोर टेस्ट। The more and more tests you'll write, you'll remember that you'll realize you'll remember more facts than you even know about yourself. Right. तो ये चीज़ है, पर वही है कि एक लेवल के बाद फैक्ट नहीं याद होंगे, वो हमको रियलाइज करना है। पर जो हमारे पास जो स्मॉल डेटा ऑफ फैक्ट्स है, वही सारे आंसर्स में यूज हो जाएगा इन सम वे और द अदर, और वो आपको तभी रियलाइज होगा व्हेन यू राइट मोर एंड मोर टेस्ट। अच्छा यशार्थ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। व्हेन आई ओपन साइंस टेक, पॉलिटी कम्स इनटू माय माइंड। व्हेन आई ओपन पॉलिटी बुक, देन आई स्टार्ट रीडिंग पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री कम्स, I end up opening all the books. पढ़ाई कुछ नहीं कर पाया। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता था कि जब पार्टिकुलरली इन जनरल स्टडीज, कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो लग रहा है पॉलिटी छूट रहा है, पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो साइंस टेक छूट रहा है, तो ये यूजुअली बच्चे काफ़ी इसमें परेशान हो जाते हैं कि सर कैसे, कितने सब्जेक्ट्स एक बार में हम ओपन करें, या एक को ख़त्म करें फिर दूसरा करें। इस कहते हैं इनसफिशिएंसी सिंड्रोम से कैसे बाहर निकलें कि पॉलिटी पढ़ते हैं तो साइंस याद आता है, साइंस पढ़ते हैं ज्योग्राफी याद आती है, कैसे इसको टैकल किया जाए? आई थिंक एवरीवन गोज थ्रू दिस वन फेज, मतलब अपनी जर्नी के किसी ना किसी फेज में somebody goes through it, so there is no alternative to it, you will have to face it. अब ऐसा है कि मैं जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना था कि न्यूज़पेपर पढ़ा, कितना याद है नहीं याद है भूलो, नेक्स्ट न्यूज़पेपर पे मूव करो, उसी तरीके से मेरा होता था। ज्योग्राफी पढ़ ली, now I'm not concerned with what I remember in geography or not, I'll move on to the other thing. और यही तो डिसिप्लिन मांगता है। What is discipline? Discipline is sticking to what you have to do, not what you want to do. This is discipline, right? अगर आपको सुबह ज्योग्राफी पढ़ना है लेकिन आपका मन कर रहा है मैं तो हिस्ट्री पढ़ूंगा, नहीं, आपको ज्योग्राफी पढ़ना है। समझ रहे हैं? तो दिस इज व्हाट डिसिप्लिन रिक्वायर्स। तो वही है कि अगर आपने अपना शेड्यूल बना लिया है कि यार मैं मंथ के फर्स्ट वीक में ज्योग्राफी पढ़ूंगा, तो नो मैटर आपको हिस्ट्री याद आ रही है, डजंट मैटर, साइंस एंड टेक याद आ रहा है, कोई डजंट मैटर, पॉलिटी याद आ रहा है, डजंट मैटर, इट शुड गो आउट ऑफ द क्वेश्चन। इवन आपका बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा तो भी ज्योग्राफी पढ़ो, अगर आपने ज्योग्राफी फिक्स किया हुआ है। दिस इज व्हाट डिसिप्लिन, और यही होता है परसिवेरेंस। एंड दैट्स व्हाई व्हेन वी स्पीक अबाउट परसिवेरेंस, हार्ड वर्क, ये सब केवल कुछ मॉरल साइंस की वैल्यूज नहीं है, दे हैव देयर इफेक्चुअलिटी इन योर एग्जाम इन दिस मैनर। यही इसी तरीके से ये आपके रियल लाइफ में फॉर्म लेती हैं। दिस इज वो नहीं है केवल कह देना कि हार्ड वर्क चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, ये केवल लाइक हवा में बोलनी हुई क्लीशेस नहीं है। यहाँ पे ये आपकी लाइफ में एक्चुअलिटी में ये आपकी लाइफ में काम आ रहा है। बिकॉज अगर आप अगर आपने डिसाइड किया है कि मैं महीने इस हफ्ते के 2 दिन साइंस एंड टेक पढ़ूंगा, तो आपके दिमाग में चाहे फिजिक्स आए, चाहे ज्योग्राफी आए, चाहे हिस्ट्री आए, चाहे पॉलिटी आए, चाहे आर्ट एंड कल्चर आए, नहीं, कोई डजंट मैटर, उस टाइम पे आपको केवल वही पढ़ना है। दिस इज हार्ड वर्क। क्योंकि हमारा मन तो हमेशा वो करना चाहता है जो अच्छा लगता है, लेकिन हमको वो करना थोड़ा ना है। व्हाट वी वांट टू डू एंड व्हाट इज गुड फॉर अस मे बी 2 डिफरेंट थिंग्स। तो आपको वो करना है जो आपको करना है उस टाइम पे, और वो आपका डिसिप्लिन डिसाइड करता है। तो डिसिप्लिन इज अल्टीमेटली गुड। अच्छा यशार्थ, लास्ट में देयर आर so many students who will be watching your video
Some of them have already started their preparation. कुछ अभी सोच रहे हैं कि मुझे करना है. टॉपर का इंटरव्यू मोटिवेट करता है उनको. What is your message to these two classes of students? मेरा तो मैसेज यही रहेगा कि हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी रिमेन्स द कोर करेंसी ऑफ सक्सेस इन यूपीएससी. स्लो बिगिनिंग से करें. बिगिनिंग्स विल बी टफ फॉर एवरीवन, पर हमें अपना ऑब्जेक्टिव नहीं लूज करना है कि देयर इज अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव दैट वी हैव टू गो टू लबासना बेसिकली एवरीवन. तो आप अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, स्मॉल टारगेट सेट करिए, मोटिवेट करिए अपने आप को. पर वही है कि डिसिप्लिन में रहना है, एक डेली शेड्यूल फिक्स करना है, कितने स्लॉट करना है, दैट आई लीव टू एवरीवन. तो वो पर्सनल होता है. तो और उस पर आपको स्टिक करना है. थोड़ा सा टाइम आप सोशल आउटिंग के लिए घटा दीजिए, थोड़ा सोशल मीडिया से दूर हो जाइए, थोड़ा सा मतलब if you find everyone knows कि what is good for them and what is bad for them. So if you realize that some things are hurting your objective or goal of becoming a civil servant, then आप उसको avoid करें. And this is what discipline requires. So discipline, hard work, consistency, और writing test regularly, both for prelims and mains. क्योंकि if I can tell something from my mistakes that led me to my third attempt, were the mistakes of not doing enough tests for prelims and not doing enough tests for mains in my second attempt. So आप टेस्ट रेगुलरली करिए, रिविजन ज़्यादा करिए, कीप योर सोर्सेज रिस्ट्रिक्टेड. अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे लगता है ORN में कई लोगों को इशू होता है कि मेरा दोस्त हिस्ट्री का ये सोर्स पढ़ रहा था, उसका रूममेट और जो उसके ऊपर रहता है वो दूसरा सोर्स पढ़ रहा था. सो यू आर कन्फ्यूज कौन सा सोर्स पढ़ना है. चूज वन सोर्स फॉर वन थिंग और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए. राइट टेस्ट रेगुलरली. और ठीक है आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता, डोंट लूज होप, मूव ऑन टू द सेकंड अटेम्प्ट. और डोंट लूज होप, मूव ऑन टू द थर्ड अटेम्प्ट. बट और ऐसा भी नहीं होगा कि आप हर समय मोटिवेटेड रहें. देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू विल फील लो, बट इवेंचुअली आपको अगर आपका ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग में है तो आप यू विल बी एबल टू हैंडल दैट डीमोटिवेशन वेरी वेल. और ये तो हर किसी के साथ होता है. नोबडी स्टेज मोटिवेटेड थ्रू आउट द जर्नी. हर किसी के लोज एंड अप्स आते हैं, बट यू विल नो हाउ टू डील योर लो इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर स्ट्रैटेजी. अगर आपको पता है कि ये मेरी स्ट्रैटेजी मुझे मेरे ऑब्जेक्टिव तक ले जाएगी. तो आई थिंक फोकस ऑन योर स्ट्रैटेजी, कीपिंग योर सोर्सेज रिस्ट्रिक्टेड, रिवाइजिंग them multiple times, doing tests regularly and avoiding distractions in your life. I think this will help you in your journey. Okay. Thank you, Yasharth. Thank you so much. So this was a very lovely conversation, enlightening conversation with All India Rank 12, Mr. Yasharth Shekhar. He talked about various aspects of civil services journey. How to maintain that discipline. Test is very important. You read newspaper and move on. You read your one module of general studies and again move on. So don't be conscious. You simply keep doing things. Perseverance will actually get you the final selection. He talked about the mistakes that he committed in GS paper 4 and the mistakes that you should avoid. What is the issue with GS paper 3? What is the best way to maximize your marks in optional? Particularly, he had an excellent marks in geography, 306 out of 500. So, various points well discussed. Hopefully, this conversation will guide the students in right direction. Thank you, Yasharth. Thank you so very much. Thank you for inviting me.